जनमंच सत्यनो आवाज जन समस्याओने वाचा आपती दमणनी नंबर 1 न्यूज चेनले 14 महीनामां 18 लाख व्यूज मेळवता दर्शक मित्रोनो आभार माने छे। અને એટલું જ નહીં, ઇન્સિનરેટર મશીન્સ પણ લગાવવામાં આવેલા છે। કેટલી સ્કૂલમાં ઇન્સિનરેટર મશીન્સ છે? હાથ ઉપર કરો, કેટલી સ્કૂલ્સમાં છે? કોઈ સ્કૂલમાં છે, કોઈ સ્કૂલમાં નથી। તો જલ્દીથી આ ઇન્સિનરેટર મશીન એ સ્કૂલમાં પણ લગાવવામાં આવશે, જેના કારણે જે યુઝડ નેપકિન છે તેનો નષ્ટ તમે ઇઝીલી કરી શકો। અને જો એનો નષ્ટ ઇઝીલી થશે તો આપણા જે જાતીય પ્રજનન તંત્રના જે રોગો છે તેનો ફેલાવો પણ અટકાવી શકાશે। તો આટલું હતું તમારા ઉમંગ પ્રોગ્રામ વિશે। એ ઉપરાંત પણ હું તમને માસિક ધર્મ વિશે થોડું કંઈક સમજાવવા માંગીશ કે માસિક ધર્મ શું છે। અહીંયા બેઠેલા કોઈને પણ ખબર છે કે માસિક ધર્મ શું છે? તો એના માટે હું કહું છું કે દરેક મહિલાના ગર્ભાશયમાં એક ઝિલ્લી કરીને એક લેયર હોય છે અને દરેક મહિલાનું અંડાશય, દરેક મહિલામાં દર મહિને એક અંડાશય ઉત્પન્ન તૂટીને ઝિલ્લી સાથે બહાર આવે છે। તો એને જ આપણે માસિક ધર્મ કહીએ છીએ। જો ફલિત થઈ જાય તો ગર્ભ રહે અને ના થાય તો માસિક રૂપે બહાર આવે છે। તો તમે કહો, જો શરીરનું એક જ એક અંગ જે મહિલાનું જે ઈંડું છે અથવા તો અંડાશય અને ઝિલ્લી જે બહાર આવે છે અને એ જ લોહી નીકળે છે, તો શું એ પવિત્ર હોઈ શકે? તેમ છતાંય આપણા સમાજમાં ઘણી બધી એવી માન્યતા છે કે મહિલાઓમાં માસિક ધર્મમાં જે લોહી આવે છે તે અપવિત્ર છે। કેટલા લોકો માને છે કે આ અપવિત્ર છે? કોણ માને છે કે આ અપવિત્ર છે? કોઈ નહીં। ઠીક છે, તો હજુ પણ તમારી આસપાસ કોઈ પણ જે વસ્તુ માનતા હોય કે માસિક ધર્મમાં જે કોઈ પણ લોહી આવે છે તે ગંદુ હોય છે કે અપવિત્ર હોય છે, એ ધારણા ખોટી છે। એ સિવાય આપણા સમાજમાં ઘણી બધી બીજી ગેરમાન્યતાઓ છે। કોઈ બતાવશે કઈ ગેરમાન્યતા છે? શું કહે છે? રસોઈમાં નહીં જવાનું, બીજું મંદિરમાં નહીં જવાનું, બીજું અથાણું નહીં ખાવાનું અથવા એને નહીં અડકવાનું, બીજું કોઈ દિવસ તમે પૂછેલું છે તમને બધાને આ વસ્તુ ઘરમાંથી કીધેલી છે? ક્યારેય કોઈ એનું કારણ પૂછેલું છે? અથવા મમ્મીએ તમને કીધું છે કે બેટા રસોઈમાં નહીં જવાનું? કેટલી છોકરીઓએ પૂછેલું છે કે કેમ નહીં જવાનું? કેટલાએ પૂછેલું છે? હાથ ઉપર કરો। કોઈએ પૂછેલું છે કેમ નહીં જવાનું? અથવા મંદિર નહીં જવાનું કોણે પૂછેલું છે કે કેમ નહીં જવાનું? કોઈએ નથી પૂછેલું। તો પહેલાના જમાનાથી જે વસ્તુ ચાલતી આવી છે તે જ આપણે ફોલો કરતા રહ્યા છે। કોઈ દિવસ પણ એના પાછળનું કારણ જાણવાનો આપણે પ્રયત્ન નથી કર્યો કે આ બધી રોકટોક કેમ કરવા। પહેલા એટલા માટે કહેવામાં આવતું હતું કે પહેલા સેનિટરી નેપકિન્સ કે કપડા જેવી કોઈ પણ ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ ન હતી, તો ત્યારે આટલી સ્વચ્છતા પણ મેન્ટેન નતા કરતા। તો એ જમાનાની સ્ત્રીઓ સ્વચ્છતા મેન્ટેન નથી કરતી, એટલે જ્યારે પણ કોઈ રસોઈ બનાવતી તો કદાચ બગડી જતી હશે, કારણ કે સ્વચ્છતા નથી, ભેજ હતો, એના કારણે ફૂગ લાગતી અને બગડી જતી। પણ આજે તો આપણે બધા એજ્યુકેટેડ છે ને, આપણે સ્વચ્છતા મેન્ટેન કરીએ છીએ, સેનિટરી નેપકિનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો આ બધી માન્યતાઓ આજે કોઈ પણ હદે સાચી નથી। ઠીક છે, તો હું આશા રાખું છું કે આજે તમે અહીંયા આવીને બધી ગેરસમાજ અથવા ગેરમાન્યતા જે છે તમારા સમાજમાં એ તમે દૂર કરો, સેનિટરી નેપકિનનો ઉપયોગ કરો અને સ્વચ્છતા જાળવો। थैंक यू। ऊपर जो प्रकाश डालना है और पूरा उसके ऊपर जितनी भी गलत मान्यता है उसको निकालना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन्होंने बहुत अच्छा अपना इनपुट देके हमारे यहाँ पे 2 से 3 बार मैडम आई और यहाँ के जितने भी हमारे एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनके बीच में एक अच्छी एक भावना और एक इसके बारे में एक जागरूकता उन्होंने लाई, जो आप देख सकते हैं। इवन दो हमारे यहाँ के जो एडोलसेंट मेल थे उनके लिए भी मैडम ने यहाँ पे एक टॉक दिया और उनके अंदर भी काफी सारा चेंजेस उनके अंदर आया, क्योंकि लोग ऑलवेज पीरियड्स और इसके बारे में कुछ अगर बात करते हैं तो घृणा से देखते हैं या घृणा से सुनते हैं कि नहीं हमसे इससे बात नहीं करना है, लेकिन उन्होंने मैडम ने बहुत अच्छी तरह से बताया। तो ऐसी जो मैडम है डॉक्टर सुरभि सिंह, जो सच्ची सहेली से है, सच्ची सहेली की प्रेसिडेंट है, मैं उनके साथ जो आई हुई रिकिता नरोला, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम के बारे में 2 शब्द कहें। रिकिता नरोला फ्रॉम सच्ची सहेली। कि मुझे मैम का इंट्रोडक्शन देना है। 1 साल बाद उनके साथ काम करने पर भी मुझे आज तक समझ में नहीं आता है मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ। लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में बताते हुए, डॉक्टर सुरभि सिंह गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। उन्होंने 11 साल से ज्यादा प्रैक्टिस की और ये समझा अपनी प्रैक्टिस से कि बहुत सारी लड़कियां उनके पास आती हैं, बहुत सारी औरतें उनके पास आती हैं और उनको उनके साथ
देखकर ये मालूम पड़ा कि उनको अपने शरीर के बारे में सारी जानकारी नहीं है, जिससे कि उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उनको ये लगा कि सारी औरतें, सारी लड़कियां उनके पास नहीं आ सकती हैं, तो इसीलिए उन्हें ये लगा कि उन्हें उनके पास जाना होगा। उन्होंने जो अपनी नॉलेज गेन करी है, इतने सालों की उन्होंने जो पढ़ाई करी है, उसका अच्छा इस्तेमाल करने के लिए वो अपने क्लिनिक से बाहर निकली। उन्होंने सच्ची सहेली जो सिर्फ एक शुरुआत जो हुई थी, एक मूवमेंट थी, एक एनजीओ भी नहीं था, उन्होंने इस तरीके से शुरू किया कि उन्होंने अपने घर के पास जो स्कूल्स थे वहां पर जाके मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर, यानी कि पीरियड्स के ऊपर, माहवारी के ऊपर जानकारी बच्चों को देनी शुरू करी। वहां से फिर ये आगे बढ़ता गया और एक एनजीओ में बदल गया, और आज डॉक्टर सुरभि सिंह ने अपना प्रैक्टिस छोड़कर वो फुल टाइम यही काम करते हैं। पूरा टाइम उन्होंने अपना डिवोट सच्ची सहेली एनजीओ को किया है, और आज हमने और उनके लीडरशिप के अंदर हम लोग ये कर पाए हैं कि दिल्ली के और यहाँ पर आके हम कुछ 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ये नॉलेज दे पाए हैं। और थैंक्स टू डॉक्टर सुरभि सिंह एंड हर लीडरशिप, एंड थैंक यू सो मच। उसका विमोचन करने जा रहे हैं। ऐसे नहीं देंगे, पहले देखेंगे खाली तो नहीं होगा। बहुत सारी चीजें ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? अखबार, पेपर, ये क्या है? वॉलेट में और एक साथ 5 चीजें हैं जो कभी भी आप हमेशा साथ रख सकते हैं, इसमें डाल के रख सकते हैं छोटे वाले, तो हमेशा साथ रखोगे तो कभी भी आपको पीरियड्स हुआ आप यूज कर सकते हैं। डार्ट में दे सकते हैं, ठीक है, जाएगा तो दूसरा उपयुक्ता सुनीता बोल दिया ना, क्योंकि हमें अब तक सिखाया गया है ये सारी बातों को धीरे से बोलना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए। मम्मी ने कहा है किसी को पता न चल जाए, लेकिन हम क्यों ऐसी बात करते हैं? क्योंकि हमें ऐसी बातों को एक डब्बे में पैक करके अपने जेब में रखनी है। लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसे ही शर्म और डर की वजह से कई सारी लड़कियां अपनी जिंदगी बहुत सारे खतरों में रख देती। एक तो घर का काम करना, वापस से पिया का टिफिन बनाना, वापस से उससे पापा का टिफिन बनाना। चलो टिफिन पैक कर देती हूँ, मैं भी बैग पैक कर देती हूँ। अरे आंटी हमको बताओ ना, पिया कहाँ है? बेटा पिया तैयार हो रही है, रुक उसे बुला। नहीं, आप नहीं रुको, हम खुद उनको बुलाने जाएगा। अरे पिया क्या कर रही हो अभी तक? तुम्हें पता नहीं कितना लेट हो गया, तो स्कूल भी तो जाना है। हाँ मैं आती हूँ, तो ये फिर मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। पता नहीं हमारा टिफिन कब आएगा। माँ मेरा टिफिन, बेटा ये टिफिन ले, टाइम पर खा लेना। ठीक है माँ। पापा पापा क्या हुआ बेटा? पापा मुझे आपसे कुछ चाहिए था। क्या चाहिए बेटा? पापा मुझे 20 रुपए चाहिए। 20 रुपए किस लिए चाहिए? पापा आज ना दोस्तों के साथ मैं बाहर जाऊंगी, तो मुझे समोसे और वड़े पाव खाने के लिए। देखो बेटा, अब के लिए मैं दे देता हूँ, लेकिन बाहर का खाने से हम बीमार होते हैं, इसलिए अभी हफ्ते में 1 ही बार दूंगा, ठीक है ना? ये लो। बाय पापा। अरे पिया जल्दी चलो, तुमको पता नहीं है कितना टाइम हो गया। क्या हुआ पिया? क्या तुमको पेट में दर्द हो रहा है? तो तू क्या सोच रही है? तू स्कूल नहीं आएगी ऐसा? तो ठीक है, तेरा टिफिन मुझे दे दे, और तू अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ, ठीक है ना? अरे प्रिया क्यों रो रही है तू? कुछ नहीं माँ। मुझे क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ। मैं इसे देखने का कपड़े सुखा के। ठीक है बेटा। कपड़े भी खराब हो गए। क्या हुआ पिया, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं दीदी। बट बताओ ना मुझे, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना। दीदी वो क्या हुआ? दीदी वो आज जब स्कूल जा रही थी तो मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द होने लग गया, और मुझे अजीब सा गीलापन लग
मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं समझ गई, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। इस कपड़े को पकड़ो और अच्छी से नहा के अपने पेशाब की जगह पे रख देना। ठीक है। स्कूल में क्या होता है? समझे नहीं कुछ शूटिंग चला। अरे सुनो दोस्तों, आज है ना अपने यहाँ पे कौन आने वाला है पता है? हेल्थ कैंप टीम वर्कर आने वाले, मतलब कुछ मेंबर आएंगे। वो क्या करेंगे इधर आके पता है? अपने को हेल्थ एजुकेशन देंगे। पर किसके ऊपर देगी ये पता है? मासिक की साफ सफाई पे। तो तुम क्या करना है पता है? शांति को बनाए रखना है। क्या करेगा तुम? और आज छोकरी तू आज भी सो रही है, आज तो सोना का तुमके पीरियड में, ठीक है? समझ गई ना? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? बढ़िया है मैडम, बढ़िया। मैं भी बढ़िया। आहा आहा। बहुत हो गए बस। आज हम बहुत ही जरूरी विषय पे बात करने वाले हैं। आप सबको तो पता ही होगा आज हमारा विषय क्या है? मासिक। ठीक है, हाँ सही कहा आपने। क्या आपको मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि मासिक आते समय आप क्या इस्तेमाल करते हो? कपड़ा। कपड़ा? अब भी आप कपड़ा इस्तेमाल करते हो? क्यों? क्योंकि मैम पैड बहुत महंगा आता है ना, इसलिए। किसने कहा पैड महंगा आता है? हमारी भारत सरकार पैड की सुविधा मुफ्त देती है। हर स्कूल, कॉलेज, सरकारी अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्र जैसी जगहों पे पैड मुफ्त मिलता है। पर मैम, कपड़े और पैड में क्या फर्क है? आप कपड़े को धो के उसी को बार बार पहनते हो, मतलब बीमारियों को पैदा करते हो। मतलब इसका ये होता है कि आप बीमारियों का शिकार होते हो। इसीलिए आपको कपड़ा नहीं क्या पहनना चाहिए? पैड। हाँ, 2 से 8 हम मासिक में रहते हैं। क्या पता है पहले और दूसरे दिन में मासिक का बहाव बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं, वो सामान्य है। लेकिन चौथे दिन के बाद वो धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन अगर चौथे दिन के बाद भी खून का बहाव कम ना हो तो आपको घबराने की बात है। कहाँ जाने की बात है? डॉक्टर के पास। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका खून का बहाव ज्यादा है? बहुत ही आसान। अगर आपको दिन एक बड़ा वरदान है, क्योंकि भगवान ने उत्पत्ति करने का जो अधिकार या हम हक बोलते हैं वो सिर्फ 2 ही लोगों को दिया है। पहला है भगवान खुद और दूसरा हम स्त्रियों को। क्या ये सच में शर्म की बात है? आपने कभी सुना है किसी आदमी ने या पुरुष ने बच्चे को जन्म दिया हो? बिल्कुल नहीं। ऐसी तरह क्योंकि भगवान को भी पता है सबसे ताकतवर कौन है? लड़कियाँ। इसलिए हमें कभी भी इस बात को लेकर शर्म से सर झुकाना नहीं चाहिए, बल्कि गर्व से हमारा सर उठना चाहिए। और तो और अब हम बात करते हैं लक्षणों की। कौन कौन से लक्षण आप अनुभव कर सकते हो इस मासिक के दौरान? अरे मैडम, हमको जब है ना मासिक आते तो हमारे सर में बहुत दर्द होता है। सही बात है। मैम, कमजोरी भी लगती है और मैम पेट दर्द होता है। बराबर है। मुंह पे पिंपल आता है। अच्छी बात है। ये आपने जितने भी लक्षण बताए ये सारे सामान्य लक्षण थे। और मैं बताना चाहती हूँ थोड़े असामान्य लक्षण थे, जैसे कि हम अंग्रेजी में इसे कहते हैं व्हाइट डिस्चार्ज, या फिर हिंदी में हम बोल सकते हैं सफेद पानी। वैसे तो ये नॉर्मल होता है जो हमें मासिक के पहले और मासिक के बाद आ रहा है, लेकिन ये असामान्य कब कहलाता है? जब उसकी मात्रा बढ़ जाए, दूसरा उसमें से गंदी बदबू आने लगे, और तीसरा उसका रंग सफेद से पीला या हरा होने लगे। तो हमें सख्त जरूरत है किसके पास जाने की? डॉक्टर के पास। बहुत ही सही बात। अरे मैडम, तुमको पता है जब हम मासिक में आता है ना तो हमारी मैया कहती है कि तुम रसोई घर में नहीं जाना। ऐसा थोड़ी चलता है। रसोई घर? हाँ मैम, और तो और मेरे घर में तो पपैया खाने भी मना किया है उन दिनों में। पपैया भी नहीं खाने देते। और मैम, मेरे घर में तो मेरी मम्मी कहती है कि पौधों को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, उससे पौधे मुरझा जाते हैं। और हाँ, हमारे तो घर में उन दिनों में ना अचार को भी हाथ नहीं लगाने देते हैं। मम्मी कहती है कि खराब हो जाता है। वही तो मैडम, हमारे घर में भी वही चलता आ रहा ये है। सारी बातें बहुत ही गलत और उटपटांग है। अब आप सोचोगे ये सारी बातें मैं इतने दावे से कैसे कह सकती हूँ, लेकिन जरा आप लोग ही सोचो, ये बातें आपको किसने बताई? जो आपके पहले जो लोग थे, बड़े पूर्वजों थे, उन्होंने बताई। और उनके पास क्या रखने के लिए तो दूर की बात, पहनने के लिए भी कपड़ा था? नहीं था। इसलिए वे ये
सब चीजें करते आते थे। क्यों? क्योंकि जब भी लड़की मासिक में आए तो क्या होता था, वो जहाँ कहीं जाएगी वहाँ उसको मासिक का जो खून है वो गिरेगा और उससे बीमारियों का ज्यादा फैलाव होगा। तो जैसे आपने बताया वो किचन में ना जा सकती है, नहीं आचार्य के पास जा सकती है, नहीं पौधों को छू सकती है। और तो और मैंने सुना है कि कोई लड़कियां तो नहाना भी छोड़ देती है, लेकिन ये भी बात गलत ही है। क्यों? क्योंकि पहले के समय में कुएं में लोग नहाया करते थे, इसलिए क्या होता था, वो पानी पूरे गांव इस्तेमाल करता था खाने के लिए और नहाने के लिए। तो सोचो बीमारी का फैलाव कहाँ तक पहुंचेगा। इन सारे कारणों की वजह से हमें क्या करवाया गया कि एक ही जगह पर बैठने का है, लेकिन अब ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये बात सही है। इसलिए हमें कभी भी ये गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए और हमारी यही गलतियों की वजह से हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में फंस सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा क्या याद रखना चाहिए, हमें क्या इस्तेमाल करना है, पैड। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हम हैं तो पीढ़ी है, पीढ़ी है तो ये परिवार है और परिवार है तो सारा संसार है। इसलिए जब बीमारी आ जाए तो पैड को लगाए, सुन ले प्यारी बात हमारी, चाहे घबराए उमंग जाए। धन्यवाद। कैसा लगा नाटक? इतना अच्छा कि नींद आ गई? तो क्या समझ में आया नाटक देखकर? पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स के बारे में कुछ जानकारी मिली? अच्छा, जितने स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हैं और जो महिलाएं बैठी हैं, जो भी आपके पंचायत वगैरह से जो महिलाएं आई हैं, पीरियड आप जानते हैं दुनिया की हर लड़की को होता है, हर लड़की को होता है, चाहे जो भी हो। आप टीवी में देखते हैं ना, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, खेलने में जब देखते हैं तो आप देखते हो कि आपकी साक्षी मित्तल जो कुश्ती में भी हरा के आ जाती है, आपकी पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, सबको तो पीरियड्स होते हैं ना। अगर सारी दुनिया में सारी लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, आप कहीं भी देखते हैं सुनीता विलियम्स जो 6 महीने स्पेस में रहकर आई, उसको भी पीरियड्स होते थे। समझ सकते हैं ना, दुनिया की कोई भी लड़की जिसको पीरियड नहीं होते ऐसी नहीं है। लेकिन क्या होता है, अभी तक क्या होता आता है कि हर लड़की सोचती है बस मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो सबसे छुपाते रहते हैं। क्या बोलते रहते हर वक्त जब पीरियड्स आते हैं तो इससे क्या होता है, एक भूत हमारे कंधे पर बैठ जाता है और जो हमें बस एक बात याद दिलाता है, पता ना चल जाए, पता ना चल जाए। और हम उस पता ना चल जाए के डर से ना हर वक्त छुपाते रहते हैं कि किसी को पता ना चल जाए। और जैसे स्कूल में आप देखते हो कि पैड अगर चेंज करने जाना है तो पूरा ऐसे इधर उधर छुपा के लेकर जाएंगे कि किसी को हल्की सी भी खबर ना लग जाए कि हमें पैड चेंज करने जाना है। बैग के अंदर अगर पैड रखा है या स्कूल से पैड्स मिलते हैं तो पूरे टाइम बैग की रखवाली करते हैं, क्या चाहिए बताना, किसी को पता ना चल जाए। ये भूत हमेशा सिर पे बैठा रहता है। इतनी सारी जानकारी होने के बाद समझ में आता है कि सबसे पहले तो इस भूत से निपटना चाहिए। क्यों पता ना चल जाए? पीरियड्स आना कैसा लगता है? अच्छा नहीं। कितने लोगों को पीरियड्स आना अच्छा नहीं लगता है? क्यों होती है मुसीबत? अच्छा, कितने लोगों ने कितनी बार सोचा होगा कितना अच्छा होता लड़का बन जाते तो ये मुसीबत ना झेलनी पड़ती, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि जब दुनिया की किसी भी लड़की को मैं जहां जाती हूँ सब यही बोलते हैं कि अगर ये इतना खराब लगता है हमें तो इसे बंद क्यों नहीं करा दिया जाता? सब जगह डेमोक्रेसी है ना, प्राइम मिनिस्टर भी डेमोक्रेसी से चुनते हैं, सब कुछ। अपनी बॉडी के बारे में डेमोक्रेसी नहीं मिलती हमें। हम चाहते हैं किसी को अच्छा नहीं लगता तो क्यों बंद नहीं हो जाता है? मैं तो सोच रही हूँ कि एक एप्लीकेशन लगा दी जाए सुप्रीम कोर्ट में कि इसको बंद करवाया जाए। तो तैयार है? कितने लोग तैयार है कि पीरियड्स बंद करा रहे हैं? बाकी लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? कोई नुकसान है पीरियड्स बंद कराने में? क्यों चाहिए हम जिंदगी भर के पीरियड्स और सबकी आंखें ऐसे देखते जैसे हमने कोई पाप कर दिया हो? जब अच्छा नहीं लगता तो बंद हो जाना चाहिए ना। करा दे? हाँ, कितने लोग तैयार है? हाथ क्यों नहीं उठा रहे? इतने कम लोगों से कुछ नहीं होगा, सबको हाथ उठाना पड़ेगा तब तो जाके बंद होगा। क्या नुकसान हो जाएगा अगर पीरियड्स बंद हो जाएंगे? तो कोई नुकसान है क्या? क्या क्या नुकसान है भाई? सबको पता है लेकिन बोलेगा कौन? फिर हम माँ नहीं बन पाएंगे। कितनी शर्म की बात है ना, हम माँ बन गए तो, है ना?
पीरियड्स आना शर्म की बात है और ये खड़े होके ये बोलना कि फिर हम माँ नहीं बन पाएंगे। छोड़ो, हमें माँ भी नहीं बनना। क्यों बने हम माँ और दुनिया जिंदगी भर पीरियड्स झेलते रहे? नहीं बनना माँ, नहीं झेलने पीरियड्स, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर सारी लड़कियां तय कर लें कि हमें पीरियड्स नहीं चाहिए, नहीं बनना हमें माँ, तो क्या होगा? दुनिया खत्म हो जाएगी, जनसंख्या आगे नहीं बढ़ेगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे, इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे क्या हम लोग? हम तो नुकसान करा देते अभी। अगर लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो वो माँ बन सकती हैं, और वो माँ बन सकती है तो जनसंख्या आगे बढ़ती है, जनरेशन आगे बढ़ती है और ये दुनिया चलती है। वरना तो क्या होता? जैसे डायनासोर खत्म हो गए, देखे किसी ने डायनासोर? मूवीज में देखे, किताबों में देखे, पर सच में तो नहीं देखे ना। कैसे पता चलता है हमें डायनासोर के बारे में? पर खोद खोद के आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं डायनासोर की लंबी सी पूंछ होती थी। हम कहते हैं अरे वाह, डायनासोर की पूंछ होती थी। फिर पता चलता है एक दिन गड्ढे खोद के कि डायनासोर का लंबा सा दांत होता था। अरे वाह, डायनासोर का दांत भी होता था। तो हमें पता चलता है, कितना मजा आता है। सोचिए कभी लड़कियों ने तय कर लिया होता कि पीरियड्स नहीं चाहिए, नहीं पैदा करने बच्चे, तो क्या होता? इंसान खत्म हो जाता। फिर कोई नई स्पीशीज ग्रो करती, या फिर कोई एलियंस आते और वो आके ढूंढते इंसान कैसे होते थे। तो खोद खोद के पता लगता अरे इंसान के तो 2 हाथ हुआ करते थे। फिर पता चलता अरे पैर भी थे, है ना। लेकिन ये करना नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हम लड़कियां समझदार हैं और हम जानते हैं कि हमें पीरियड्स आते हैं तो दुनिया चलती है, और इसलिए किसी ने हाथ नहीं उठाया कि इसको बंद करा दो। पर सबसे अजीब बात यह है, हम सब जानते हैं कि पीरियड्स होते हैं तो दुनिया चल रही है, लेकिन इस बात पे हमें शर्म आती है। कितनी शर्म की बात है कि हम ही हैं जो दुनिया को चला रहे हैं यार, है ना। क्या ये वाकई शर्म की बात है? क्या पीरियड्स आना शर्म की बात है या गर्व की बात है? हाँ, इतने लोगों के लिए तो गर्व की, इन सबके लिए अभी भी शर्म किए लग रहे हैं। क्या पीरियड्स आना गर्व की बात है या शर्म की बात है? पर ये सोच ऐसी बनाई गई है शुरू से कि पीरियड्स आने का मतलब हमेशा खराब ही लगता है, नेगेटिव शुरू होता है हमारी जिंदगी में। पीरियड्स आते हैं तो बस ये पता चल जाता है हमें कि अब हम क्या क्या नहीं कर सकते। कोई ये नहीं बताता कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी असली ताकत को कोई हमें नहीं बताता, बस ये बताया जाता है कि क्या नहीं कर सकते। और क्या नहीं करने के साथ साथ और एक भूत हमारे कंधे पे बिठा दिया जाता है जो हमेशा ये कहता है कि पता ना चल जाए, है ना। तो आप सबसे पहले भूत को तार के नीचे पटक दो और खड़े हो जाए उसके ऊपर, अब पता चलने दो। कुछ गलत नहीं है, कुछ गंदा नहीं है, कुछ शर्म नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो खुद कर ही नहीं सकता, इसीलिए भगवान ने हमें चुना है ये करने के लिए। इसलिए हमसे ऊपर तो कोई है नहीं, तो शर्माना किससे और डरना किससे है। पीरियड्स आना, जैसे अभी सबने बताया आपको, एक बहुत ही नॉर्मल सी शारीरिक प्रक्रिया है, जैसे कि दिल धड़कना और सांस लेना। दिल सबका धड़कता है ना? चेक करके बताना अच्छे से, धड़कता है ना? सांस सब ले रहे हैं? सुबह सुबह इंजन तो स्टार्ट नहीं करना पड़ता ना कि दिल धड़क जाए, धक 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 धक, पूरा दिन आराम से कटेगा। ऐसा होता है क्या? सांस के लिए सुबह सुबह रामदेव तो नहीं बनना पड़ता, अब पूरा दिन सही से चलेगी, ऐसा तो नहीं होता ना। अपने आप होता है, सोते हैं, जगते हैं, खाते हैं, कुछ भी करते हैं, सांस तो चलती रहती है, बस चलती है ना। दिल भी धड़कता रहता है। शाम को पार्टी में जाना है, दिल धड़के जा रहा है, सबके सामने क्या होगा, इसको रुक जाना चाहिए, ऐसा तो कभी मन में नहीं आया ना। जानते हैं ना रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए कभी सोचते भी नहीं है। लेकिन दिल धड़कने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई, सांस लेने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई। पीरियड्स के लिए लगाने गए थे क्या? गया था कोई? ये भी अपने आप होता है। अगर दिल का धड़कना जरूरी है, सांस का लेना जरूरी है, तो पीरियड्स का आना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए सबका कंट्रोल भगवान ने अपने हाथ में रखा है, क्योंकि ये इतना ही जरूरी है। लेकिन बाकी चीजों पे शर्म नहीं आती, पीरियड्स पे आती है। तो इस पीरियड की शर्म का भी कुछ तो करना चाहिए ना। शर्म इसलिए आती है क्योंकि जानकारी नहीं होती। जानकारी नहीं होती तो जो भी कहता है मान लेते हैं। जैसा चलता आया हमेशा से, तो ऐसा कुछ नहीं रहा होगा जैसा आज है। पहले तो कोई और समय रहा होगा ना। अच्छा, कोई बता सकता है कि दुनिया में सबसे पहली बार पीरियड्स कब आए होंगे? उसने प्रोक्रिएट किया होगा, रिप्रोडक्शन हुआ होगा, उसके बाद आज इतने हजारों करोड़ों लाखों पता नहीं कितने साल पहले हुआ होगा, तो आज हम सब दुनिया में दिखाई देते हैं। तो जब सबसे पहली लड़की को पीरियड्स आएगा तब तो शायद मंदिर भी नहीं होंगे और धर्म भी नहीं बने होंगे। पहले तो इंसान ही बने थे ना। और हम लोगों ने सारे धर्म बनाए, हमने कैलेंडर बनाए, हमने महीने बनाए, और फिर हम टेंशन में आने लगे मुझे हर महीने पीरियड नहीं आता। पीरियड को तो पता भी नहीं, आपने कैलेंडर और डेट्स बना ली है, वो तो अपनी साइकिल के हिसाब से आता है ना। तो ये सारी चीजें तो बहुत बाद में, पीरियड्स तो बहुत पहले से आते थे। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बाद में बना ली और हम पीरियड्स को अच्छा गंदा ये वो सब कुछ कहते उसको परेशान होने लगे हैं।
जानते हैं पीरियड्स की काउंटिंग कैसे करते हैं आप लोग? कैसे पता चलता है मेरा पीरियड्स ठीक आ रहा है कि खराब आ रहा है, मुझे नॉर्मल साइकिल होती है या नहीं होती? कितनी बार डर जाते हैं ना हम लोग, मुझे तो 1 महीने में 2 बार आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे 1 महीना छूट जाता है, सब गड़बड़ लगता है। अच्छा बताइए, अगर मुझे 2 अप्रैल को पीरियड आ गया और मुझे उसी महीने में 25 अप्रैल को फिर से पीरियड शुरू हो गया, क्या ये नॉर्मल है? सही है? हाँ या नहीं? अच्छा, अगर मुझे 28 मई को पीरियड आया, जून में मुझे पीरियड नहीं आया और जुलाई में 2 तारीख को पीरियड आया, क्या ये सही है? पीरियड की काउंटिंग कैसे की जाती है? जब पहला दिन आपको ब्लीडिंग होती है, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है, खून गिरना शुरू होता है, वो पहला दिन होता है, उससे गिनना शुरू करते हैं 1 2 3, और जिस दिन दोबारा ब्लीडिंग शुरू होती है अगला टाइम पे, पहला दिन जो होता है उसके बीच का जो अंतर है वो मेरी पीरियड साइकिल, मासिक चक्र या मेरा माहवारी चक्र होता है। और अगर ये गिनती 21 दिनों से 35 दिनों के बीच में कहीं भी होती है, वो नॉर्मल है। ठीक है, अगर महीने में 2 बार आ गया, यानी 21 दिन में अगर आता है 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन, अगर ऐसा आएगा तो 2 बार आ जाएगा ना, तो डरने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मैंने कहा 28 मई को आया, फिर मुझे जुलाई में आया, जून में नहीं आया, तो गिनती करके देख लीजिए क्या वो 35 दिन के साथ अंदर है, तो डरने की जरूरत नहीं है, वो सब नॉर्मल है। जैसे मैंने बताया कि पीरियड्स को बिल्कुल नहीं पता कि 28 दिन होते हैं फरवरी में या अप्रैल में 30 दिन होते हैं, पीरियड्स अपनी साइकिल के हिसाब से आता है। तो हर महीने गिनती करो कि मेरे को दोबारा ब्लीडिंग कितने दिन पे होती है। अगर वो गिनती कहीं भी 21 दिन से लेके 35 दिन के बीच में आती है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है। बाकी चीजें आपको बताई गई कि जैसे 9 से 16 साल उम्र होती है जब पीरियड्स आते हैं, यानी 9th बर्थडे 9वां जन्मदिन आने के बाद और 16वां जन्मदिन आने के पहले, इस बीच में कहीं भी पीरियड्स आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 9वां जन्मदिन आने से पहले पीरियड आ जाए या 16वां जन्मदिन हो चुका है और पीरियड नहीं आए तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी, पहली बात किस उम्र पे आते हैं, दूसरी बात कितने दिन में दोबारा आते हैं, तीसरी बात इन्होंने बताया था 2 से 8 दिन के बीच में, यानी कि अगर आपको ब्लीडिंग 2 दिन होती है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, अगर इतना दिन के बीच में कहीं भी होती है तो घबराइए मत, ये नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है। मगर ये ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा लगता है ना इसको 2 ही दिन ब्लीडिंग होती है, हमें कितने मजे, हम तो 8 दिन तक झेलते हैं, है ना, और 2 दिन वाली टेंशन में इसका तो सारा गंदा खून निकल जाता है, हमारा पक्का छूट जाता होगा। सबको टेंशन है, इसमें बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 दिन भी नॉर्मल है, 8 दिन भी नॉर्मल है। 2 से 8 दिन के बीच में कितना भी दिन खून गिरे कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि 4 दिन पूरा हो गया उसके बाद भी खून का बहाव उतना ही है जितना कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन था, इसका मतलब खून ज्यादा गिर रहा है, फिर एक बार डॉक्टर को दिखा लें। और एक कंडीशन होती है जब हम कहते हैं इमरजेंसी है, चेतावनी, घंटी बजानी चाहिए, तुरंत भागो डॉक्टर के पास, वो क्या है, अगर हर घंटे में पैड चेंज करना पड़ा, इतना गीला हो जाता है आपका कपड़ा या पैड कि आपको हर घंटे में दौड़ना पड़ रहा है, तो वो ज्यादा है। खून के बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े निकलने लगे तो ज्यादा है। कई बार जो महिलाएं सोचती है मैंने तो अबॉर्शन की मेडिसिन खाई थी तो मुझे तो ज्यादा होना ही है, जी नहीं, ये बहुत ज्यादा है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। 3 महीने से खून नहीं गिराना तो ज्यादा तो आएगा ही, जी नहीं, ये भी गलत है। अगर 3 महीने ब्लीडिंग नहीं हुई उसके बावजूद इतना खून नहीं गिरना चाहिए। कोई भी बहाना अपने आप को मत दीजिए, तुरंत दौड़ के जाइए डॉक्टर के पास। महीना खत्म होने वाला है, मेरी तो उम्र हो गई है तो खून ज्यादा गिरेगा, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आपका कीमती खून जितना कम, मतलब जितनी देर आप करेंगे उतना ज्यादा वो बहता जाएगा, इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको हर घंटे में पैड बदलना पड़ रहा है, इतना ब्लड आपको जा रहा है, तो ये सारी बातें अभी आपको बताया था, नाटक के जरिए समझ में आया है कि कैसे मुझे गिनती करना है, कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। एक और बात जैसे कि अभी बताया था कि पीरियड्स में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पीरियड्स आने का मतलब होता है कि मेरे शरीर का गंदा खून बाहर निकलता है, इसकी सफाई हो जाती है। कितने लोग ऐसा मानते हैं या सुना है कहीं? एक दूसरे को देख के अपने मन का बता दीजिए। ऐसा सुना है कि पीरियड्स में आने वाला खून गंदा खून होता है ना? तो कहाँ से आता है गंदा खून और कहाँ लगी है गंदे खून की फैक्ट्री? हार्ट के बारे में सुना है, किडनी के बारे में सुना है, लंग्स के बारे में सुना है, ये कौन सी नई फैक्ट्री है जहां से गंदा खून निकलता है? 9th क्लास के बच्चे भी है जिन्होंने 8th क्लास में रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा है, वो धीरे धीरे स्माइल कर रहे हैं।
क्योंकि ढंग से नहीं पढ़ा था तब। तो कहां से आता है गंदा खून, कोई बताएगा? ये कोई गंदा खून नहीं होता, ये हमारे ही शरीर का खून होता है। जैसे चोट लगने पे निकल जाता है उसी तरह से तो हमारी, जैसे कि अभी आपको मैडम ने बताया था ना, वो नर्सिंग कॉलेज वाली डॉक्टर ने बताया था कि हमारे शरीर में जब लड़की पैदा होती है, आप जानते हैं हमारे पास बच्चेदानी नाम सुना है, गर्भाशय बच्चेदानी, ये होती है, सब लड़कियों के पास होती है। उसी के साथ ट्यूब्स होती है, 2 अंडवाहिनी और 2 अंडाशय होते हैं हमारे पास इधर उधर। जब हम पैदा होते हैं तब भी हमारे पास होते हैं, लेकिन तब से तो हमें ब्लीडिंग नहीं होती, खून तो नहीं गिरता, तो कुछ तो बदलाव हमारे शरीर में होता है जिसके बाद ये सब शुरू होता है। तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास 2 बैंक होते हैं जिनका नाम हमने अंडाशय या ओवरी रखा है। और बैंक के अंदर जानते हैं जब हम पैदा होते हैं तो कितने अंडे होते हैं हमारे इस बैंक में? 20 लाख अंडों के साथ एक लड़की पैदा होती है, वो बैंक के अंदर रखे हैं। लेकिन इस बैंक का अकाउंट खुलता है तब जब हम बड़े होते हैं, इसलिए जब तक इस बैंक का अकाउंट नहीं खुलता तब तक हमें पीरियड्स नहीं होते। और बैंक का अकाउंट खुलने का मतलब हर महीने सैलरी के जैसे एक बार सीधी तरफ से और एक बार बाईं तरफ से अंडा निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे अंडे निकलने शुरू हो जाते हैं उसी तरह से हमें मासिक आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर अंडा इस उम्मीद से बाहर निकलता है कि मुझे तो बच्चे में बदलना है। अब उसको नहीं पता कि कौन सा अंडा बच्चे में बदलेगा, कौन सा नहीं बदलेगा। ये तो सब कुछ वैसा चल रहा है जब बाल विवाह कर दिया जाता था, सुना है ना बचपन में, तब भी ऐसा ही होता था। आज हम लड़कियां पढ़ने लगे हैं, शादी की उम्र तय कर दी है, सब कुछ हमारे हिसाब से चला है। अब हम शादी के लिए नहीं करते हैं, अब हम सोचते हैं कि पहले जिंदगी में कुछ बनना है। लड़कियां बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, अब लड़कियां जिंदगी में कुछ बनना चाहती हैं। लेकिन ये सारा सिस्टम पहले की तरह से चलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता कि जैसा शुरू में था पहली लड़की को रहा होगा ऐसा ही आज भी है। तो हर महीने जैसे ही हमारा दिमाग, हमारा जैसे कहते हैं ना अलार्म सेट करते हो ना, जैसे सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया तो 6 बजे बजेगा ना, ऐसे दिमाग एक अलार्म सेट कर देता है कि इस उम्र पे लड़की का अंडा वाला जो काम है वो शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो अलार्म बजता है तो बहुत सारे मैसेंजर, पोस्टमैन होते हैं, वो दिमाग से पोस्टमैन दौड़ दौड़ के बता देते हैं और लड़की के शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। हमारे बाल सिल्की होने लगते हैं, चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं, आवाज बदलने लगती है, स्तनों का विकास होता है, लंबाई बढ़ती है, सब कुछ बदलने लगता है। और ये सारे पोस्टमैन, जिसको हम साइंस में हार्मोन्स कहते हैं, ये सारे हार्मोन्स जगह जगह जाके बता देते हैं कि लड़की बड़ी हो रही है, अब ये बदलाव होने लगते हैं। कुछ बदलाव शारीरिक होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं, गुस्सा बहुत आने लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत ऐसे लगता है क्या हो रहा है, ये ऐसा होता है ना, ज्यादा लड़ाई करते हैं उन दिनों, हम बहुत गुस्सा करते हैं। तो ऐसे वाले सारे बदलाव हमारे शरीर में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अंडा बाहर निकलता है, जैसे मैंने बताया हर अंडा इस उम्मीद से बाहर निकलता है कि मुझे तो बच्चे में बदलना है। किसी को नहीं पता कौन सा अंडा बदलेगा कौन सा नहीं बदलेगा, सारे तो नहीं बदल सकते ना, कुछ ही अंडे बदलते हैं। तो जो अंडा बच्चे में बदलता है उसको बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, जैसे एक बीज को जमीन में दबाते हैं ताकि उसको पोषक तत्व मिल जाए और उसको पानी वगैरह मिले, इसी तरह इस अंडे को बड़ा होने के लिए खून की जरूरत होती है। तो गर्भाशय अपने अंदर एक झिल्ली बनाता है जिसमें काफी सारा खून इकट्ठा करता है, ताकि जैसे ही वो बच्चा अंडा उसके पास पहुंचेगा तो वो उसको अपने अंदर दबा ले और उसको खून पहुंचाना शुरू कर दे। होता है हवा में हमेशा इन्फेक्शन है, और ये इन्फेक्शन को जैसे ही अपने अनुरूप कुछ भी मिलता है ये बढ़ने लगता है, पनपने लगता है। पैड को अगर 6 घंटे से रहा, गीलापन भी है, दूसरा ब्लड में इतना सारा न्यूट्रिशन है कि वो इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा। और 6 घंटे से ज्यादा अगर हम पैड लगा के रखेंगे तो ये इन्फेक्शन पैड से मेरे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा। तो हल्का गीलापन है, पैड सिर्फ गीला हुआ है, सिर्फ निशान भी लगा है, तो भी 6 घंटे से ज्यादा मत लगाइए। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इसको जरूर बदल लीजिए। पैंटी के किनारे गीले हो जाते हैं, कई बार निशान लग जाता है, सोचते हैं कल नहाएंगे तब चेंज कर लेंगे, लेकिन फिर वही है, गीलापन भी है और ब्लड भी है, इन्फेक्शन तो सब जगह है। वो इन्फेक्शन वहां बढ़ना शुरू होता है, जांघों में हमें लाल लाल पूरा रेड रैशेस हो जाते हैं, जांघें लगने लगती हैं, तो इन्फेक्शन हमारे शरीर तक पहुंच जाता है। अगर हम पैड को सही तरह से फेंकते नहीं है, बाथरूम में इधर उधर फेंक दिया तो क्या होता है, आपने देखा होगा ना, कहीं कॉमन टॉयलेट में जाकर पैड्स पड़े होते हैं इधर उधर, हवा में इन्फेक्शन है, पैड्स खुला पड़ा है, तो वो ब्लड के साथ पूरा रिएक्शन करके 2 घंटे में पूरे बाथरूम में इन्फेक्शन फैल गया। आप कोई नॉर्मल लेडी भी जाएगी बाथरूम यूज करने, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि ऐसा कुछ गलती हम ना करें। ये फाइल भी अगर मेरे पास है तो ये गलती करने की संभावना नहीं है। 6 घंटे हो गए, मैं स्कूल में हूँ, मैं ट्रेन में जा रही हूँ, मैंने एक टूर पे गई हूँ, पिकनिक पे गई हूँ, मुझे याद है 6 घंटे में पैड बदलना है, मैंने फटाफट, अब मुझे छुपा के नहीं ले जाना है ना पैड को इधर उधर, सिर्फ एक पाउच लेके जाना है,
अच्छा सा पाउच मैंने उठाया, आपको यहाँ से मिलेगा। आपने पाउच बैग से निकाला, आप टॉयलेट में गए, फटाफट अपना पुराना पैड अखबार में या किसी कागज में लपेटा, खुला नहीं छोड़ा, फेंक दिया। नया पैड, पैंटी देखा ये तो गंदी हो गई है, फटाफट पॉलीथीन में डाली, इसको पाउच में वापस रख लिया। अब मैंने नया पैड, नई पैंटी लगा ली, लेकिन मेरे हाथ गंदे हो गए, तो मैंने फटाफट पेपर सोप से हैंड वॉश कर लिया। ना कुछ गंदा किया, ना मैं गंदी हुई। एक छोटी सी आदत ने मुझे पीरियड्स के डर से और इन्फेक्शन से एकदम हमेशा के लिए दूर कर दिया। डॉक्टर सुरभि सिंह ने और उससे पहले जो इतना अच्छा नाटक एक स्किट यहाँ पे किया, हमारे टैलेंटेड नर्सिंग कॉलेज के बच्चों ने, उससे पहले जो नर्सिंग कॉलेज से फैकल्टी हैं उन्होंने भी बताया, तो मेरे को लगता है कि और ज्यादा बताने की अब जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए, और लालू भाई को भी देर हो रही है, इनका भी बहुत काम है घर पे, तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये तो आपको बहुत इतना सारा जानकारी, इतने सारे जो हमारे ज्ञान दिया गया, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस हॉल में जो लोग बैठे हैं वो डेफिनेटली सब समझ गए कि मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस और मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप सबको यहाँ से जाके जो भी आपके फैमिली, दोस्त, स्कूल फ्रेंड्स, सबको ये जानकारी देनी है। सब दोगे? कितने कम लोग देंगे? सब लोग जानकारी दोगे ना जाके? हाँ, जानकारी देनी है और उस जानकारी को हर घर तक पहुंचाना है। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम, ये स्कीम लॉन्च की है, उमंग। उमंग का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। उमंग मीन्स यूनिवर्सल, सबसे पहले है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल माने सबके लिए, इसलिए इसका नाम रखा है यूनिवर्सल। अभी तक जो स्कीम चलती थी वो जनरली स्कूल के बच्चों तक सीमित थी। पैड जो मिलते थे वो स्कूल में ही मिलते थे, लेकिन जैसे बताया गया 9 साल से लेके शुरू करके और 45-50 साल तक की महिला, इन सबको मासिक होता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हरेक को ये जानकारी मिले, हरेक को ये पैड्स मिले, हरेक को उनका जो पैड को यहाँ वाली फेंक के डिस्पोजल का तरीका मिले, इसलिए हमने ये स्कीम चलाई है। तो यूनिवर्सल का मतलब है कि सबके लिए है, केवल स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस सबसे पहले है, यूनिवर्सल के बाद है मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बाकी लोग ने बताया, जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अब तक हमारे बीच में गलत धारणाएं फैली हैं, जो भी अंधविश्वास फैले हैं, वो जानकारी के अभाव में है। तो हमारी स्कीम का पर्पस है कि हरेक महिला तक, हरेक पुरुष तक ये जानकारी पहुंचे। लड़कों को भी होनी चाहिए कि नहीं? केवल लड़कियों को होनी चाहिए? हाँ, लड़कों को भी होनी चाहिए जानकारी। तो उसको जब जानकारी होगी तभी वो मुंह नहीं छिपाएंगे, नहीं तो पापा है, लड़की को, बेटी को हो गया पीरियड तो उधर मुंह देखेंगे, मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं जानकारी। उससे छिपना नहीं है, हमें जानकारी होगी तभी हम समझा पाएंगे बच्चे को, तभी उसको ठीक से गाइड कर पाएंगे। तो अवेयरनेस होना चाहिए। और अगला वर्ड है हाइजीन, साफ सफाई। तो साफ सफाई तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत एक आंदोलन की तरह कर रहे हैं ना। स्वच्छ भारत सुना है? स्वच्छ भारत सुना है? गुड। तो स्वच्छ भारत तभी होगा जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन आएगा, और स्वस्थ भारत भी तभी होगा जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन होगा। क्योंकि जैसे बताया, बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर हम साफ सफाई मासिक धर्म के दौरान, पीरियड्स के दौरान नहीं रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो स्वस्थ कैसे रहेंगे? और अगर पैड ठीक से यूज नहीं किया, कुछ और यूज किया, यहाँ वहां डिस्पोजल ठीक से नहीं किया, तो स्वच्छ भारत नहीं हो सकता। ठीक है? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम
है हमारा, जिसमें आप सब हमारे साथ देंगे। हर बच्ची, हर महिला एनजीओ से हो या हमारे एमपी साहब हो, इलेक्टेड मेंबर हो, किसी भी पार्टी से हो, सबको इस आंदोलन से जुड़ना है ताकि मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानकारी, मेंस्ट्रुएशन के हाइजीन की इम्पोर्टेंस हर घर घर तक पहुंचे। तभी हम स्वच्छ रह पाएंगे, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, ये स्कीम का लॉन्च हुआ। मैं हमारे ऑनरेबल एमपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इस प्रोग्राम में आए, इतनी सारी गणी बड़ी जानकारी ली और ये सब जानकारी आपको जाके देनी है आपका जो, इसीलिए ये अपनी तरह का देश का पहला प्रोग्राम है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग को देख के बाकी स्टेट्स में भी धीरे धीरे ये इस तरह के प्रोग्राम होंगे। तो सब बच्चों को मेरे को लगता है अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी आपने ली और इस जानकारी को अपनाएं भी और घर घर तक, हर एक महिला तक, हर एक भाई बहन सब तक पहुंचाएं। थैंक यू। અહીં ઉમંગ યોજનાનું જે લોન્ચ અને SS યાદવ સાહેબે જણાવ્યું કે દેશમાં પ્રથમ પહેલો કાર્યક્રમ આપણા દમણમાં છે। એક નાના પ્રદેશની અંદર આ કાર્યક્રમ હોય તો આપણે બધાને હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ડોક્ટરોને અને પ્રશાસક શ્રી બબલુભાઈ પટેલ અને પ્રધાનમંત્રી આપણા નરેન્દ્ર મોદીજી દેશના એમને અભિનંદન આપવું જોઈએ કે આપણા નાના પ્રદેશને એક યુટી લેવલ ધ્યાનમાં રાખી ઉમંગ યોજનાનું લોન્ચ કરી આજે આપણે ઉપસ્થિત અહીંયા, તો એમને અભિનંદન આપીએ। પ્રથમ આજના પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત प्रशासक सलाहकार श्री SS यादव जी, आपने बहुत अच्छा टूक समय में बता लिया और हिम्मत दिया हमारी बच्ची को। और दूसरा जो दिल्ली से आई हुई डॉक्टर सुरभि, आपने बस सबसे अच्छा जोश भर गर्म जोश में जो आपने बताया हमारी बच्ची को, बहुत अच्छा बताया और सिस्टम से बताया। बहुत जरूरी था ये चीज हमारे जीवन के लिए। आज हमारी बच्ची, हमारी माँ में, हमारी बहन में अगर पीरियड नहीं होता, मासिक धर्म नहीं होता तो हम आज दुनिया में नहीं होता। ये दुनिया चलाने के लिए, देश चलाने के लिए ये जरूर है सिस्टम। इसलिए कोई बच्ची, माँ बहन हमारी घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो कुदरत की देन है, ये दुनिया चलाने के लिए ये जरूर है, लेकिन इसको सिस्टम से उसको फॉलो करना है हमारी फर्ज है। और यहाँ सभी डॉक्टर और हमारे बच्चे जो आए उसका स्वागत करता हूं। हमारा जो स्वागत किया हमको बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन स्वागत तो हमारी बच्ची, मां को, हमारी बहन को करना चाहिए इस अवसर पे। गुरप्रीत, आपका भी स्वागत है, सभी डॉक्टर का स्वागत है। यहाँ जो टीम पूरी आज देख रहा हूं मैं, मीडिया कर्मी, आपका भी स्वागत है मेरे तरफ से, मेरी पार्टी तरफ से, क्योंकि आज हमारी मां नहीं होती, बेटी नहीं होती तो हम यहां नहीं होता। मासिक धर्म को घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो बोलता, सही बोला कि आचार से मत हाथ लगाओ, पापड़ से नहीं जाना, रूम से नहीं जाना, मंदिर में नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, उसका हल्का पानी भी नहीं पीना, उसको दूर रखो, उसका परछाई नहीं पड़ना चाहिए। ये सब चीज बहुत गलत है और बेकार है। पहले जमाने में सब चलता था, अब नहीं चलेगा वो। ખાસ કરીને આજનો જે આખો કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવેલો છે આ શું કાર્યક્રમ હતો? આજનો જે ઉમંગ યોજનાનો કાર્યક્રમ હતો એ દેશમાં પ્રથમવાર અમારા દમણની નાના પ્રદેશને ધ્યાનમાં રાખીને અમારી હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ અને અમારા પ્રશાસક ભૂપેન્દ્ર પટેલ, અમારા સરકાર શ્રી SS યાદવજી, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન એમને કે આટલી સંખ્યામાં અમારી બહેનો માસિક પીરિયડ, માસિક ધર્મના માટે જે એમણે રાખેલો પ્રોગ્રામ, અને પછી સુરભી મેડમે, ડૉક્ટર સુરભી મેડમે જે એમણે એની સ્પીચમાં બતાવ્યું, ખરેખર એ સારું હતું। અને છોકરીઓ માટે જે બધી સિસ્ટમ જે આના માટે હતી પીરિયડ માટે એ બતાવી અને જરૂરી, અને કીટ બી સાથે આપી અને નાટક બી બતાવ્યું, એના દ્વારા બી અમને ખબર પડી। અને આને અમે દરેક પંચાયત લેવલ પર લઈ જશું અને
મોટા મોટી ગામડામાંની જરૂર છે આની. ગામડાની અંદર, શહેરની અંદર તો ભણેલા ઘણા હોય છે એટલે એનું ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી લે, પણ ગામડાની અંદર જ્યાં નથી ત્યાં મારે બી ફરજ બને દમણની અંદર, દેશની અંદર બી બને, એવું કંઈ નથી. પણ આની જગ્યા દરેક જગ્યાએ આનું વિતરણ થવું જોઈએ અને દરેક જગ્યાએ મળી રહી. કોઈ દુકાનમાં કે કોઈ જગ્યાએ કેબિન બનાવીને કોઈ નાનો બિઝનેસ કરે ત્યાં બી આ વસ્તુ રાખવું જોઈએ ગામડાની અંદર, કે જેથી સહેલાઈથી એ લોકોને મળી જાય અને આ નેપકિન એના લઈ અને વાપરે. કેમ કે આનાથી શરીરમાં બીમારી, ઇન્સ્પેક્શન કે જે હોય તે એ નીકળી જાય. અને આજે જે યાદવ સાહેબે અને સુરભી મેડમે જો છોકરીઓને બતાવ્યું એની સ્પીચમાં, એ ઘણું સારું અને સુંદર હતું અને એને આપણે આગળ વધાવીને આપણે એના પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. અને આમાં મોટી શરમની વાત હોય, મને બતાવીએ આને બતાવીએ, પણ આજે બધું દીકરીની હિંમત આપી આજના પ્રોગ્રામમાં કે દીકરી પોતે જાતે કરતી થઈ, પોતાની માને બતાવે, મોટી બહેનને બતાવે. એના પ્રોગ્રામ બહુ જરૂરી હતી અને આજે સરસ પ્રોગ્રામ અત્યારે થયો અમારી સાથે, બધા સાથે. અને જે મેં તો કીધું કે અમારું માન સન્માન નહીં, અમારી દીકરીનું માન સન્માન કરવાનું હોય આ પ્રોગ્राम अंदर, तो आज ना प्रोग्राम सारू गया. धन्यवाद. जैसा आप जानते हैं कि आज ये उमंग प्रोग्राम का लॉन्च हुआ. इसका पर्पस है कि मेंस्ट्रुएशन है जो मासिक धर्म है उसके बारे में जानकारी हर महिला तक, हर बच्ची तक पहुँचे. क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत स्वच्छ रहे, भारत स्वस्थ रहे, तो जब तक मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं होगा, उससे जुड़ी हुई भ्रांतियाँ दूर नहीं होंगी, तब तक ये ना भारत स्वच्छ हो सकता है, ना भारत स्वस्थ हो सकता है. बहुत इम्पोर्टेंट इसके लिए है. मासिक धर्म को लेके बहुत समय से बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और उसका जो है भुगतना हमारी बच्चियों को पड़ता है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं दी जाती है. उनको उसके कारण जो हाइजीन नहीं मेंटेन करने के कारण जो तकलीफ़ें होती हैं, जो दर्द होता है, जो बीमारियां होती हैं, उनके बारे में नहीं पता है, जो उनको सहन करना पड़ता है. तो इसलिए हमने सोचा कि ना केवल स्कूल के बच्चों में जहाँ अब तक सैनिटरी नैपकिन मिलते थे, बल्कि हर घर तक ये बात पहुंचाई जाए, हर घर तक मेंस्ट्रुएशन की जानकारी हो, हर घर तक सैनिटरी पैड पहुंचे और हर घर तक उनके डिस्पोजल का तरीका पहुंचे, ताकि हमारी महिलाएं स्वस्थ रहें, हमारा एरिया स्वच्छ रहे और हमारा भारत स्वच्छ और सुंदर रहे. खास करके बात की जाए दमन की, तो दमन एक टूरिज्म स्पेस भी है, तो टूरिज्म के लिए भी यहाँ पर किस तरह से मतलब कि उन लोगों को भी ये सुविधा मिल सके. बिल्कुल, जब महिला ट्रैवल करती हैं तो सबसे डर रहता है, जैसे बताया गया कि कहीं पीरियड्स तो नहीं हो जाएं, बीच पे हैं या कहीं और हैं तो कहीं अचानक पीरियड्स नहीं शुरू हो जाएं. तो इसलिए ये हर आंगनवाड़ी सेंटर में, हर स्वास्थ्य सेंटर में इस तरह के पैड उपलब्ध रहेंगे, कहीं से भी ले सकते हैं. और जो किट दिया गया 5P पाउच जो यहाँ आज दिया गया, मैं चाहता हूँ कि हर महिला, ना केवल दमन दीव की बल्कि हर महिला देश की वो 5P पाउच अपने पास रखे, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उसका यूज़ हो सके. सर, इसके लिए आशा वर्कर काम करेंगे, हो सकता है आगे एनजीओ को भी साथ में लिया जाएगा क्या, लोगों की जानकारी के लिए? नहीं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या पब्लिक से जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनका बहुत बहुत स्वागत है. हम चाहते हैं कि ये भी एक जन आंदोलन बने. हर घर तक बात तभी पहुंचेगी जब एक जन आंदोलन का रूप लेगी. और आशा बहनें हमारी बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस पूरे क्रांति में, और हमारी आंगनवाड़ी की वर्कर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वही हर घर तक इसको लेके जाएंगी. लेकिन जो हमारे साथ इसमें आना चाहता है, हम कोशिश करेंगे कि एनजीओ भी आएँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी आएँ, हर जन हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी पहुँचाएँ. तो स्कूल में ऐसा होता है कि एम्प्टी हो जाते हैं मशीन्स जो रहती हैं, और कई बार फिर क्या प्रोफेसर से बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, और फिर वो रस्ट खाता रहता है मशीन, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? नहीं, डेफिनेटली थोड़ा बहुत इनसेंसिटिविटी अगर किसी में है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए हम इसको आंदोलन का रूप दे रहे हैं कि वो उसको अपना काम समझे. अगर सैनिटरी नैपकिन ख़त्म हो गए तो खुद से इनिशिएटिव लेके लाए. सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का भी काम है, एजुकेशन का भी काम है, उसको भी हम दुरुस्त करेंगे. लेकिन साथ साथ अगर प्रोग्राम को अपना मान के चलाएंगे, स्कीम को अपना मान के हर टीचर चलाएगा, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि पैड खत्म हो जाए. અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો. जनमंच न्यूज चैनल तथा राष्ट्रीय અને સ્થાનિક ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અખબારોમાં જાહેરાતો આપવા માટે સંપર્ક કરો નીરવ ભટ્ટ, મોબાઈલ નંબર 9228105414. ઓફિસનું સરનામું શોપ નંબર 2, બેનઝીર ચેમ્બર, ખારીવાડ મેઇન રોડ, PWD પાણીની ટાંકીની સામે, નાની દમણ, દમણ.
ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है, उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के ही उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત જે લોકોનો જે લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે એ સિવાય પણ જેની આવક મર્યાદા 1 લાખ કરતાં વધુ છે એવા સંઘ પ્રદેશના નાગરિકો માટે પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકાશે। આશા રાખું છું કે આપ પણ આ યોજનાનો લાભ લેશો। સાથે સાથે આ યોજના અંતર્ગત તમામ લાભાર્થીઓને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની મંગલ કામના કરી शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। यह योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर व्यक्ति को लेना है? इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा।
बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो, तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब તેમજ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ જે આ યોજના જે અમારા ગામડામાં લાવી, જેમનેથી અમે સારી રીતે ઇલાજ કરી શકીએ છીએ બીમારીઓનો, તેથી એમનો ધન્યવાદ મેં હાથ જોડીને એમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। मयूर एंटरप्राइज अब पाए सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक ही छत के नीचे। यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग ब्रांड के प्लम्बिंग और सैनिटरी आइटम्स। सभी प्रकार के फर्नीचर मटेरियल और फैंसी फिटिंग की चीजें, सभी प्रकार की किचन एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जनरल हार्डवेयर की चीजें और एशियन नैरोलिक पेंट। इतना ही नहीं, यहाँ स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, मेटल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा का डब्बा, सिरामिक टाइल्स भी उपलब्ध है। हमारा पता है मयूर एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 1 से 5, बामन पूजा मेन रोड, भामटी, मोती दमन, दमन। हमारा ईमेल आईडी है mayur.mahesh@rediffmail.com। हमें संपर्क करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें महेश भाई N पटेल 9825342925, मयूर I पटेल 9924988877। बचपन से ही ना मुझे हारने का शौक था। कभी अपनी बहन से, ताकि उसकी वो खरगोश वाली हंसी देख सकूं, कभी अपने पापा से, ताकि उनका बचपन फिर से लौट आए और अपनी पत्नी से तो मानो रोज का ही है। अपनों से हार जाने में ना एक अलग ही जीत महसूस होती है, लेकिन उन्हीं अपनों के लिए जीतना और भी बड़ी बात है। मुझे HIV है और मैं HIV से लड़ूंगा। HIV संक्रमित मरीजों को टीबी की जांच जरूर करवानी चाहिए, ताकि HIV की लड़ाई में टीबी आपकी हार का कारण न बने। સાંભળો છો, દમણ શહેરમાં